area of rectangle, length equal to 10 and breadth equal to 6. Then formula to find the area equal to length into breadth. Print is a function. In the bracket we have written a message. Message always we will write in quotation mark, then comma and variable. So this area is related to the length into breadth. When we run this program, we will find the result like a area of rectangle is equal to 60. तो ये 60 हमें मिलता है. Next is find area of circle. Area of circle means pi r square. At the place of pi, we have written here 3.14 into r, and value of r is 3.5. Then area of circle, comma area. Area of circle just like a message, and area, it gives the value which are calculated from the 3.14 into r. यानी कि एरिया आपका क्या होगा 3.14 into 3.5 into 3.5, ये कैलकुलेट होगा. देन इसकी वैल्यू जाएगी प्रिंट वाले एरिया में. देन जब इसको रन करोगे आप तो इसका प्रिंट आएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल इज 38.465. फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर. स्क्वायर ऑफ नंबर मीन्स 2 का स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, square of 3 9, square of 6 36, like this. So suppose we want to find the square of 2, so we have written here a equal to 2. स्क्वायर फाइंड करना है तो हमने फॉर्मूला बना लिया, स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2. सपोज a की वैल्यू होती है 3, तो 3 इंटू 3. तो इस तरह से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. और उसको सिमिलरली जैसे ऊपर प्रिंट किया, सेम एज इट इज वी कैन प्रिंट द स्क्वायर ऑल्सो. आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट सेशन में किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, फिर मैं थोड़ा सा नया स्टार्ट कर रहा हूँ. नहीं है, ठीक है. पाइथन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इन दोनों ही चीजों को हम ऊपर वाले पेजेस में हम कर चुके हैं ऑलरेडी. इसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे a इज ए वेरिएबल एंड 2 इज द कांस्टेंट नंबर. तो इन्हीं के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे. पाइथन वेरिएबल्स. A variables is a name location used to store data in a memory. Means we can use the variable to store the values. It is helpful to think of variables as a container that holds data that can be changed later in the program. For example, number equal to 10. Here number is a variable name and 10 is the constant value. Equal to is called the assignment operator. Assignment operator means we can assign the value 10 into the number variable. Here we have created a variable name number. We have assigned the value 10 to the variable. You can think of variable as a bag to store books in it, and that book can be replaced at any time. Suppose how to replace. Now one example is here, number equal to 10 and number equal to 11, sorry 1.1. So here variable name is same but constant value is different. So first we have written here number equal to 10. If you want to print the number, so that time it will print 10.
The second time we have assigned the value 1.1 in number, then we will print, it will print 1.1. It means 10 is replaced by the 1.1. So new value is 1.1. Last value will be print. Initially, the value of number was 10. Later, it was changed to 1.1. Assigning values to variables in Python. As you can see from the above example, you can use the assignment operator equal to. Equal to is the assignment operator to assign value to a variable. यानी equal to sign यूज करते हुए हम किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल. वेबसाइट, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल असाइन किया. इसमें न्यूमेरिक नहीं है, ये एक कैरेक्टर्स में है, यह एक वर्ड है. इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. जहां भी कोई भी वर्ड आए वी विल कॉल स्ट्रिंग. इसको स्ट्रिंग ही बोलूंगा मैं, अब वर्ड नहीं बोलूंगा. String always written in the quotation mark. So here variable name is website. This one is the assignment operator and this one is the constant value like a string. Now print website. Website is a variable which stored the value apple.com. When we run this print command, it will show the apple.com. In the above program, we assign value apple.com to the variable web. Then we printed out the value assigned to website that apple.com. जैसा मैंने बताया सेम एज इट इसमें लिखा है वापस कि हम वेबसाइट में एक apple.com नाम से हमने वैल्यू असाइन करी है. जब उसको प्रिंट करते हैं तो वेबसाइट के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी. चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. यहां देखते हैं हम वेबसाइट वेरिएबल है. अगेन वन मोर वेबसाइट वेरिएबल. both variable name is same but both are having a different string values, apple.com and programis.com. One print is here and one print is here. First print will print the apple.com and second print will be print the programis.com like this. तो इस तरह से हमने वेरिएबल नेम डिफरेंट दिए है, स्ट्रिंग दोनों की डिफरेंट दी है और दोनों का प्रिंट दिया है. तो दोनों ही अपने अपने वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसको प्रिंट कर देंगे. Assigning multiple values to multiple variables. Now here different variables and different values. A means 5, B means 3.2, C means hello. So there are 3 variables and 3 constant values. In print command we have given 3 variables. Print A means 5, print B 3.2, print C hello. When we run these commands, output will come 5 for A, 3.2 for B and hello for C. तो इन तीनों वेरिएबल में जो भी वैल्यूज हमने असाइन करी है वो प्रिंट हो जाएगी. If we want to assign the same value to multiple variable at once, we can do this as means 3 variables is there, but हमने क्या किया इसमें सारे तीनों वेरिएबल में हमने एक ही स्ट्रिंग स्टोर कर दी. हेलो मीन्स x मीन्स हेलो, y मीन्स हेलो, z मीन्स हेलो. Then print all 3's x,
y and z. Its result will be hello, hello, and hello. Because three variables having same variables, so output will be the same. Declaring and assigning value to a constant. अब कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई है, वैल्यू फॉर पाई इज 3.14. ग्रेविटी, स्मॉल जी जो लेते हो ग्रेविटी आप, वो 9.8 होता है. तो जिनकी वैल्यूज फिक्स है तो उनके वेरिएबल हम जनरली कैपिटल में यूज करते हैं. बाकी सारे वेरिएबल आप देखना सारे स्मॉल लेटर में ही लिए हमने, ये एक्स वाई जेड ए बी सी. और जिन कांस्टेंट की वैल्यू परमानेंट फिक्स है तो उसके लिए हम कैपिटल यूज करते हैं. रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. कुछ लॉज हैं. जब आप कोई वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल लिखने के क्या रूल्स हैं. अब जैसे आपने कोई वेरिएबल नेम दे दिया, यहाँ लिया स्नैक केस, या मैं दूं यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसके बीच में ऐसा एक अंडरस्कोर लगाना जरूरी है. यानी आपके दोनों सेपरेट नहीं होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल काउंट होता है हमेशा. फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये तो अलग अलग काउंट हो गया, तो आप क्या करोगे, बीच में ऐसा अंडरस्कोर लगा दो, तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही काउंट होगा पूरा. वेरिएबल नेम सिंगल ही होना चाहिए कंटिन्यूशन में. हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सारे स्मॉल केस में, ये सारा कैपिटल वाले केस में है अपर केस, और इसमें स्मॉल भी है और बीच में कहीं कैपिटल है फिर वापस से स्मॉल है. तो ये सारे वैलिड है. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स नेम्स should have a combination of letters in lower case A to Z or upper case A to Z or digits 0 to 9 or an underscore for example. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो भी आप लेते हो तो उसमें या तो नंबर्स होंगे या A to Z कैपिटल होगा या A to Z स्मॉल होगा. तो ये सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं. हमारे नंबर्स यूज हो जाएंगे जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल टू करके. लेटर्स के बीच में भी आप कहीं नंबर डाल सकते हो. क्रिएट अ नेम दैट मेक्स सेंस. एक चीज हो रहा है कि आप जो भी वेरिएबल बना रहे हो तो उससे कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए. जैसे किसी पर्सन का नेम देना है तो मैं वेरिएबल क्या डिफाइन करूंगा, नेम. किसी पर्सन की क्लास देनी है कि कौन सी क्लास में, तो मेरा वेरिएबल होगा क्लास. तो ये मीनिंगफुल होने चाहिए. आपको पर्सन का नेम देना है, आपने लिख दिया ए इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में लिख दिया सनी. ए का क्या सनी हुआ. इससे अच्छा हमें लेना चाहिए नेम. नेम इक्वल टू कोटेशन में लिख दिया हमने सनी. तो नेम शो कर रहा है कि उसने किसी नेम को स्टोर किया है. तो ये यही लिखा हुआ है, क्रिएट ए नेम दैट मेक्स सेंस. फॉर एग्जांपल कोई किसी वोवल को स्टोर करना है तो हमने वेरिएबल नेम लिया वोवल. मेक मोर सेंस देन वी ले लिया खाली. जैसे मैं करता हूँ वोवेल इक्वल टू, कोटेशन के अंदर दे दिया ए ई आई ओ यू. एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया वापस वी इक्वल टू ए ई आई ओ यू. तो इससे अच्छा है कि आपने वोवेल लिखा है तो वोवेल लिखे होने से कोई भी थर्ड पर्सन उसको देखे तो उसका आइडिया लग जाता है कि ये वोवेल लिखे हैं इन्होंने. उसके लिए ही इन्होंने ये डिफाइन किया है. तो प्रॉपर वे में हमें नेम डिफाइन करना चाहिए. If you want to create a variable name having two words, use underscore to separate them. For example, इसमें इसने बोला है कि जब वेरिएबल नेम में टू वर्ड्स हैं, मतलब दो स्पेलिंग है, जैसे मैंने दिया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसके बीच में सेपरेशन होता है दो वर्ड के बीच में, तो हमें अंडरस्कोर यूज करना चाहिए. यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट देम. फॉर एग्जांपल
ताकि पढ़ने में इजी रहे। जैसे हमने ये दिया, स्नेक की जगह हो गया फर्स्ट अंडरस्कोर लास्ट, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम, तो इससे सेपरेशन हो गया, एक तरह से पढ़ने में आ रही है चीज। बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मिक्स में लिख दोगे तो थोड़ा रीडेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे यहाँ दिया माई अंडरस्कोर नेम, तो इसको पढ़ने में इजी रहता है, हमें इसको पढ़े तो काफी इजी रहता है। माई अंडरस्कोर नेम, करंट सैलरी, करंट अंडरस्कोर सैलरी, तो अलग अलग हम इसको रीड कर सकते हैं इजीली। यूज कैपिटल लेटर्स पॉसिबल टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट होती है, जैसे पाई की फिक्स है, ग्रेविटी की फिक्स है, मास है, जैसे अर्थ का मास हो गया, मून का मास हो गया, वो फिक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट ये भी फिक्स है, तो इनके लिए कैपिटल हम यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेवर यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैश, $, परसेंट साइन एक्सेट्रा। ये सिंबल्स हमें वेरिएबल नेम में यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। डोंट स्टार्ट ए वेरिएबल नेम विथ डिजिट, कोई भी वेरिएबल अगर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके फर्स्ट में डिजिट नहीं लिखनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ इसके आगे 1 मास, तो ये गलत है, रॉन्ग है। ये स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं नंबर दे सकते हो आप, लास्ट में दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट में नंबर नहीं होना चाहिए। और ये सिंबल्स तो लेना ही नहीं है आपको, स्पेशल सिंबल्स ये कहीं भी नहीं लेने हैं। लास्ट क्लास में हमने लिया था एक परसेंट साइन लिया था। परसेंट साइन का मीनिंग था कि वो रिमाइंडर को शो करता है। उस फंक्शन का नेम था हमारा मॉड्यूलस, इट शोज द रिमाइंडर ओनली। एक लिया था डबल डिवीजन साइन लिया था, उस सिंबल का नेम है फ्लोर डिवीजन। डबल साइन जो था वो क्या करता है, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है। और ये तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, 3 2 बार इंटू है तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट 2, 3 एक्सपोनेंट क्या है उसके ऊपर 2 है, यानी उसकी पावर 2 है।